Good afternoon. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Alicia. Good Good afternoon. morning, Alicia. Thank you. You also trained to say good afternoon. No? आपका गुड मॉर्निंग होता है लेकिन आपको गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून आप सब लोगों का गुड आफ्टरनून होता है इसलिए. Okay, so let's start our peak state programming. Just hold on, let me bring my phone. Okay, let's start. Change your mental state instantly. Stand in a running position, right leg in the front and left ankle. So how's the raised practice in a going, running everyone? position. Think and feel that you are running an Olympic race and you are winning. Standing in the same position, just move your hands faster and faster. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run faster, run faster. Yes, fast. Yes, come on, faster. Yes, fast. Come on, faster. Yes, come on. Yes, you can do it. Come on, faster. Yes. Keep running. Fast. Yes, come on, fast. Still faster. Yes, faster. Come on, go fast. Yes, fast. And now stop. Thank you. Yes, very nice. Very nice. I'm the winner. And you say to yourself, I am the winner. Yes, thank you. So now repeat the same practice with your left leg ahead and right leg with the ankle raised behind. We do the same thing again. Okay, so let's start. 3, 2, 1, go. Come on, run. Come on, run faster. Faster. Yes, faster. Still faster. Yes. Come on. Yes, come on, fast. Yes, come on, fast. Come on. Yes. Run faster. Come on. Still faster. Yes. Come on, faster. Yes. Come on, fast. You can do it. Come on. Run faster. Still faster. Yes. Run faster. You are going to win. Come on. You're the winner. I'm the winner. Come on. Faster. Yes. Come on. Yes. Okay. Wonderful. Just stop. Yes, Thank you. I'm the winner. And now Yes, say to I'm yourself, the winner. yes, I am the winner. We all are Yes, the winners. I am the winner. Yes, I'm the winner. And now we say to ourselves, I can. can. Okay, repeat. I can. I can, I will, I must. I will, I must, I will. I must. Thank you so much. Okay, so now let's start our gratitude prayer. So let's take some deep breaths. आज हम पूरा 5 एलिमेंट्स का शुक्राना करेंगे. ओके, सो लेट्स डू इट. बहुत इन डेप्थ शुक्राना करना है 5 एलिमेंट्स का. So let's take a deep breath. Hold and release. One more time. Let's take a deep breath. Thank you, God, for this beautiful, amazing life, full of love, full of abundance, full of laughter and joy.
full of wealth and success, full of prosperity, full of harmony in relations, and full of blissfulness. Thank you, God, for one more day to be alive. एक और नया दिन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. Thanks to my parents who brought me into this world. अपने मम्मी पापा के लिए बहुत शुक्रिया जो मुझे ये दुनिया में लेके आए और मुझे अच्छे से बहुत प्यार से बड़ा किया, पाला पोसा बड़ा किया. और धरती माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आपने वो सब कुछ दिया जो हमें ये धरती पे जीने के लिए चाहिए. हर एक चीज धरती माँ से ही आती है. जो भी चीज अभी हम यूज करते हैं या हमें जो चाहिए होती है हमारी ये पूरी जर्नी के लिए, जो हम बोलते हैं प्लैनेट अर्थ की जर्नी, उसके लिए जो भी हमें चाहिए वो हमारी माँ, ये धरती माँ हमें सब कुछ देती है. अगर हम देखने जाए तो एक भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें धरती माँ ने ना दी हो. अलग अलग तरह के जो अनाज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, सब कुछ धरती माँ से आते हैं. जैसे भी जिस भी तरह के हमें वेजिटेबल्स खाने होते हैं, सब कुछ धरती माँ हमें देती है. अलग अलग तरह के, ये नहीं अच्छे लगते तो दूसरे होते हैं. इतने सारे कंदमूल, इतने सारे रूट्स वेजिटेबल, इतने सारे लीफी, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो हम खा सकते हैं, जिसमें से हमें इतना सारा न्यूट्रिशन मिलता है. ये सारे ट्रीज जितने भी है वो धरती माता पे ही है, जिसमें से हमें ऑक्सीजन मिलता है. ये धरती माता ने ही हमें इतनी सारी सड़कें दी है जहां से हम इतना सब कुछ ट्रैवल कर सकते हैं यही सड़कों पे. धरती माता ने वैरायटी ऑफ फ्रूट्स दिए हैं. इंडिया में जब थी तो वहां पे अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स, यूएस में है तो यूएस में अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स. सब जगह पे धरती माँ ने अलग अलग तरह की चीजें, वैरायटी ऑफ फूड्स वेजिटेबल्स दिए हैं. गेहूं, राइस, बाजरी, अलग तरह के सभी मिलेट्स जितने भी होते हैं, सब अलग अलग प्रकार के, सभी कुछ धरती माता आपने दिया है. उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. जितना शुक्रिया धरती माता मैं आपका करूं वो कम है, बहुत कम है. मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं आपका पूरी तरह से शुक्रिया अदा कर सकूं. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच. धरती माता, आपने मुझे ये घर दिया रहने के लिए, इतनी अच्छी छत दी. अभी बाहर -5 डिग्री है तो भी मैं अपने घर के अंदर इतनी कोजी हूँ, इतनी आराम से रह रही हूँ, कंफर्टेबल लाइफ. वो ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ यू. थैंक यू सो मच मदर अर्थ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. जो भी जितनी मेटल्स है, ये गोल्ड है, सिल्वर है, एवरीथिंग जो भी आता है वो आप में से ही आता है. आपने ही सब कुछ दिया है हमें. वो तो हम ही हैं जो आपको अलग अलग तरह से मैनिपुलेट करते रहते हैं. अदरवाइज आपने हमें सब कुछ दिया है जो भी हमें आराम से जिंदगी जीने के लिए चाहिए होता है. ये पानी भी आपके ही वो में से आता है. हमें इतने अच्छे खेत खलियान सब कुछ आपने दिया है. हमें घूमने के लिए जो प्लेसेस चाहिए थे वो भी आपने दिए हैं. जब भी कहीं पे माउंटेन्स पे चले जाते हैं तो आहा, क्या अलग ही तरह की फीलिंग होती है. वो ओनली एंड ओनली आपकी वजह से है.
आपने इतने अच्छे माउंटेन्स, इतनी अच्छी वादियां, इतने सारे फल फ्रूट, इतनी सारी खूबियां जो आपके अंदर है, जो हम ले सकते हैं अपनी लाइफ के अंदर, जो हम प्लेजर ले सकते हैं, वो सब आपके अंदर है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। कितनी वेराइटीज ऑफ फ्लावर्स होते हैं। कई फ्लावर्स मेरे इतने पसंदीदा फ्लावर्स है जो मुझे देख के बहुत खुशी होती है, मेरी आंखों में अलग सी चमक आती है। ये बटरफ्लाईज, ये फ्लावर्स, इतने अलग विभिन्न प्रकार के पक्षी, सब कुछ धरती माँ आपकी वजह से ही है। आपने ही हम सबको शेल्टर दिया है और आपने ही हमें यहाँ पे थ्राइव करने के लिए ऐसा एनवायरनमेंट दिया है। पशु पक्षियों को, एनिमल्स को, जीव जंतुओं को आपने ही वो एनवायरनमेंट दिया है जिसकी वजह से हम यहाँ पे जी पाते हैं। और हम ह्यूमंस ने आपको बहुत अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट किया है, बट स्टिल आप तो माँ है। माँ हमेशा देती रहती, देती रहती। आपके अंदर जो भी कुछ है अबंडेंस में है। फूड इन अबंडेंस, वेजिटेबल्स इन अबंडेंस, एवरीथिंग इन अबंडेंस। और तो भी हमने कई बार आपकी कंप्लेंट्स की है। जो कुछ आपने दिया है वो एक माँ ही देती है। माँ हमेशा भर भर के देती है अपने बच्चों को, उस तरह से आपने हमें सब कुछ भर भर के दिया है। उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने ही इतने बड़े बड़े समुंदर दिए हैं, जहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे ये रेत वगैरह, हर समुद्र पे चले जाते हैं, हर बीच पे कुछ अलग एहसास होता है। वो आप ही कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। कहीं चले गए तो एकदम व्हाइट सैंड, कहीं और चली गए तो क्रीम कलर की सैंड। कितने विभिन्न विभिन्न प्रकार के बीचेस आपने हमें दिखाए। जहां पे भी जाते हैं अलग 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 तरह का एहसास होता है। यहाँ के माउंटेन्स अलग, स्विट्जरलैंड के माउंटेन्स अलग, कनाडा के एल्बर्टा के माउंटेन्स अलग, वायोमिंग के माउंटेन्स अलग, इंडिया में माउंटेन्स अलग, लेह लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, सब जगह पे एक अलग ही तरह का एहसास, एक अलग तरह की जो ब्यूटी होती है। जहां पे भी चले जाते हैं कुछ अलग ही ब्यूटी है, अलग ही तरह का एहसास है। सब आपकी वजह से है धरती माँ। तो हमने आपको कभी थैंक यू नहीं बोला। आपने हमें इतना सब कुछ दिया। अगर आज हम ये गोल्ड का मेडल पहनते हैं, बहुत ही कभी कभी हम बहुत प्राउडली सबको बोलने जाते कि हाँ ये है मेरे पास, या ये ज्वेलरी है, सब कुछ आप में से ही तो आई है। सब कुछ, ये कपड़े, कॉटन, कॉटन अगर देखने जाए तो वो भी आपने ही दिया है, जिसमें से ये कपड़े बनते हैं। सब कुछ, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप में से नहीं आई। उस सबके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you for all these beautiful blessings that you have given to us. इतनी बड़ी बड़ी सड़कें बना दी कि जहां से कहीं पे भी, इतनी दूर से कहीं पे भी जा सकते हैं। ये एयरप्लेन्स की सुविधा, सब कुछ आपने हमें दिया है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
ये पूरी दुनिया हम अगर घूम सकते हैं, वो सब आपकी वजह से है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माँ धरती, जननी जन्मभूमि। आपका जितना शुक्राना करे वो बहुत ही कम है। और पता नहीं हमारे ऊपर कितने कर्जे हैं आपके, जो हम कितना भी शुक्राना कर ले चुका पाएंगे कि नहीं पता नहीं। बट अभी हमारा ये शुक्राना स्वीकार कीजिए, दिल से शुक्राना आपका, जो भी आपने दिया, बहुत ज्यादा दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ये सारे ट्रीज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये धरती माता के ऊपर जो भी हवाएं चलती है, जो विंड होती है, कि अलग अलग प्रकार की चीजें होती है। कहीं से गर्म हवा चलती है, कहीं से ठंडी हवा आती है, दोनों मिलके बारिश लाती है, स्टॉर्म्स लाती है। सब कुछ इतना मजेदार है, सब चीजें। सारी चीजों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हवा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो हमें इतना ज्यादा ऑक्सीजन देता है। इतना ज्यादा ऑक्सीजन हमें ओनली एंड ओनली हमारी लाइफ के लिए, वो कितना जबरदस्ताना बुना किया हुआ है आपने, कि जो हम कार्बन डाइऑक्साइड हम छोड़ते हैं वो ट्रीज एब्जॉर्ब करते हैं, और वो हमें इतना ज्यादा ऑक्सीजन सामने देते हैं। और इसी वजह से ये लाइफ पॉसिबल हो पाई है। कभी कभी जब ये हवा हमें छूती है तो अलग ही तरह का एहसास होता है। ये प्यारी सी मैग्निफिसेंट एयर के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी कहीं से हवा चलती है तो वो एक अलग तरह का एहसास लेके आती है। और हमारे थॉट्स भी ऐसे ही है, हवा की तरह आते हैं जाते हैं, आते हैं जाते हैं। तो ये हवा ही हमें ये एहसास दिलाती है कि छोड़ो, किसी चीज को पकड़ के नहीं रखना है, छोड़ते जाओ, छोड़ते जाओ। Thank you so much for this magnificent air that we breathe. यही हवा के कारण सब लाइफ पॉसिबल है ये धरती के ऊपर। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सूर्य देव, जो सूरज हम बोलते हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ये हीट और गर्मी जो एग्जैक्ट डिस्टेंस पे है धरती से, इसकी वजह से हमारी लाइफ यहाँ पे पॉसिबल हो पाई है। उसका बहुत बहुत शुक्राना। ये सूरज हमेशा हमेशा वो चमकता है, हमेशा सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, और एग्जैक्ट जो भी हीट हमें चाहिए होती है अपनी लाइफ जीने के लिए, वो एग्जैक्ट हीट वो हमें देता है। ट्रीज को भी एग्जैक्ट जो क्लोरोफिल पैदा करने के लिए जो भी हीट चाहिए होती है, जो भी रेन चाहिए होता है, वो सब कुछ सूरज की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ये जो कड़ी कड़ी धूप आती है, कभी कभी जब नहीं आती तो पता चलता है कि धूप का कितना ज्यादा इम्पोर्टेंस है। यही सूरज की धूप में से हमें विटामिन डी मिलता है, और बहुत सारी चीजें मिलती है। जब भी कुछ हमारे घर में अगर हमें कुछ बैक्टीरिया को मारना है तो हम बाहर धूप में सुखाने के लिए रख देते हैं। वो सब कुछ सूरज आपने दिया है। एवरी डे आप हम सबको एकदम सेम अमाउंट में ही हीट देते हैं, सेम अमाउंट में आप हमें लाइट देते हैं। आप कभी ऐसा नहीं बोलते कि नहीं तू तो ऐसी है, या तूने ये क्राइम किया है तुझे नहीं मिलेगा, या तूने ये पाप किया है तुझे ऐसा नहीं मिलेगा।
या तू इस रिलीजन में नहीं है तो तुझे ये धूप नहीं मिलेगी। आप कभी भी किसी भी रूप में सबको सेम तरह से सब कुछ देते हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जो भी आज तक आपने दिया, हमें इतनी प्यारी जिंदगी दी, वो आप ही की देन है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी आप एकदम से चमकते हो तो बहुत अलग तरह की एक खुशी, एक अलग, जब भी सूर्योदय या सूर्यास्त देखते हैं, अलग अलग प्रकार के कलर्स देखने को मिलते हैं। हर एक सूर्योदय या सूर्यास्त बिल्कुल ही अलग होता है पहले से, वो कभी सेम नहीं होता। इतना अच्छा ये जो आप हमें दिखाते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी परफेक्ट धूप की वजह से ये हमारा अनाज पकता है पूरी धरती के ऊपर। आपके बिना ये संभव नहीं है। और परफेक्ट डिस्टेंस पे हमें जो हीट, लाइट, सब कुछ मिल रहा है, वो आप ही दे रहे हो, जिसकी वजह से हमारा ये जीवन पॉसिबल हो पाया। इसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कभी कभी आप बादल के अंदर छुप जाते हैं, कभी कभी बाहर निकल के हमारे साथ मस्ती भी करते हो। आप तो आप है। आपके लिए जितना शुक्राना करे वो कम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। जैसे ही कभी कभी जब आप बादल के अंदर छुप जाते हो, अलग ही तरह की डिजाइन्स बनती है आकाश के अंदर। वो डिजाइन्स, वो अलग अलग तरह की आपकी जो खूबी होती है, वो देखने में बहुत मजा आता है। अलग अलग तरह के शेप बनते हैं, वो सब देखने में जो खुशी मिलती है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्राना आपका। सभी चीजों के लिए आपका शुक्राना। जिस तरह से कभी कभी हम जब बीमार, छोटे होते थे, हम जब बीमार होते थे तो मम्मी हमें धूप में लाके धूप में बिठाती थी और हमारी सब बीमारी गायब हो जाती थी। मुझे याद है कि मैं भी कभी कभी अपने बच्चों को थोड़ी देर धूप में जाके लेके बैठती थी, सुबह सुबह, अर्ली मॉर्निंग के अंदर। अगर पीलियो या ऐसा कुछ हुआ है तो डॉक्टर्स बोलते थे कि इसको धूप में थोड़ा सा लेके जाओ। अभी आपका इम्पोर्टेंस पता चलता है कि क्या जबरदस्त इम्पोर्टेंस है आपका हमारी लाइफ के अंदर। हमने कभी आपको शुक्राना नहीं किया, उल्टा हमेशा कंप्लेन की कि नहीं, धूप से तो स्किन ऐसी हो जाएगी, धूप से ये होता है वो होता है, बट आपको कभी हमने शुक्राना नहीं किया। बहुत बहुत शुक्राना आपका। जीवन भर करते रहेंगे तो भी कम है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। पानी का बहुत बहुत शुक्राना। पानी, पानी, ग्लोरियस पानी, अद्भुत पानी। पानी का जो कंसिस्टेंसी है, कहीं पे भी बह जाता है, कहीं पे ठहर के रुकता नहीं है। इसी तरह से हमारी भी लाइफ चलती रहती है। और हम देखने जाए तो हम कुछ नहीं है। हमारी बॉडी के अंदर अगर 70% वाटर है, पानी है, अगर हम देखने जाए तो हमारा बॉडी के अंदर और कुछ है ही नहीं। 70% इट इज मेड अप ऑफ वाटर। हमें ये हमारी बॉडी सॉलिड दिखती है, बट जब हम मेडिटेशन में या ऐसे बैठते हैं तो हमें एकदम लाइट महसूस होता है। दैट्स ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ वाटर, वाटर एलिमेंट।
inside us. और अगर हमारा ये जो ब्रेन है वो तो 80% वाटर से ही बना हुआ है। पानी के लिए भी हमने बहुत बार कंप्लेंट्स की कि नहीं पानी नहीं है, पानी नहीं है, पानी आता नहीं है, पानी की कमी है। उस सारी कंप्लेंट्स के लिए हम आज माफी मांगते हैं। वो हमें पता है कि धरती पे अबंडेंस ऑफ वाटर है, सब जगह पे। पूरी धरती में ही 70% वाटर है। इतना सारा पानी है। जब समुद्र के किनारे जाते हैं, पानी को देखते हैं, अलग ही तरह की खुशी महसूस होती है, एक अलग तरह का सुकून महसूस होता है। अभी हम 2 घंटे भी या 1 घंटा भी पानी के बिना कभी भी नहीं रह सकते हैं। हमें सब कुछ अगर देखने जाए तो हमारी पूरी जिंदगी इतनी ज्यादा पानी के ऊपर निर्भर है। कई बार हमने ये एहसास किया हुआ है कि जब पानी नहीं होता है तो हमारी जिंदगी जैसे कब रुक ही जाती है पानी के बिना। ये पानी के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्रिया। जब भी पानी पीते हैं आपका शुक्राना करते हैं, पर पता है कि जितना भी शुक्राना आपका करते हैं पानी आप बहुत कम है। अगर देखने जाओ तो ये कपड़े बनाने के लिए भी पानी ही लगता है। ये पूरी धरती पे कोई ये घर बनाने के लिए पानी के बिना वो संभव नहीं था। अगर ये कंप्यूटर चिप्स बनते हैं, कंप्यूटर्स बनते हैं, सभी चीजों के अंदर कहीं ना कहीं पानी का इस्तेमाल हुआ है। ये लकड़ी की जितनी चीजें बनती है, ईंटों में, सभी ये सड़कें बनती है, सभी चीजों में पानी के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है। ये पूरा हमारा जीवन ओनली एंड ओनली पानी की वजह से, ये 5 एलिमेंट्स की वजह से ही संभव हो पाया है। पानी का भी जितना शुक्राना करे वो कम है। हम कभी इसका कर्ज नहीं चुका पाएंगे, बट वी स्टिल ट्राई। जितना हो सके आप हमारा ये शुक्राना कबूल करो। बचपन से लेके आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ होगा कि पानी हमने इस्तेमाल नहीं किया हो। पानी के बिना हमारा जीवन पूरी तरह से जैसे थम जाता है, रुक जाता है। पानी पीने के लिए, बर्तन धोने के लिए, नहाने के लिए, सब कुछ करने के लिए पानी ही इतना महत्वपूर्ण है। वो इसका इम्पोर्टेंस तभी समझ में आता है जब कभी पानी हमें नहीं मिलता है। जब हम कभी कभी बाहर जाते थे और कहीं पे पानी नहीं मिला तो इतने प्यासे रहते थे, उस टाइम पे पता चलता था पानी का इम्पोर्टेंस। और वो 8-10 घंटे के बाद जब पानी मिलता था तो एक अलग तरह का अंदर सुकून, एक अलग तरह की शांति महसूस होती थी। पानी आपके लिए जितना शुक्राना करे वो कम है। और आज तो हम इतने ब्लेस्ड है कि पानी पूरे अबंडेंस में हमें कहीं पे भी अवेलेबल होता है। कहीं बाहर चले गए, कहीं पे भी गए हैं, पानी सब जगह पे इजीली अवेलेबल है। कहीं पे भी ऐसा नहीं होता कि हमें बहुत टाइम के लिए प्यासा रहना पड़ेगा, नहीं, पानी हर जगह पे अवेलेबल होता है। बहुत ब्लेस्ड है हम ये लाइफ के अंदर कि ये चीजें हमें, जो हमें मेन मेन चीजें चाहिए, हमें एबंडेंस में मिली है और वो भी बिल्कुल फ्री में मिली है। उसके लिए हमें कुछ भुगतान नहीं करना पड़ता। तो एटलीस्ट शुक्राना तो हम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अवकाश के लिए, ये स्पेस के लिए बहुत बहुत शुक्राना। अगर सोचो स्पेस नहीं होता तो क्या होता। यही स्पेस के अंदर ही हमारे सब सपने पूरे होते हैं।
और ये आकाश को हम जब देखते हैं तो हमें ये स्पेस का पता चलता है। जब हम एरोप्लेन में होते हैं, नीचे हम पूरी धरती माता को देखते हैं, और जब हम स्पेस में उड़ रहे होते हैं तब पता चलता है कि कितना सारा ईथर, कितना सारा स्पेस है। और यही स्पेस के अंदर, वही स्पेस हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। अगर हम बोलते हैं कि नहीं फास्टिंग करनी चाहिए, तो फास्टिंग इज व्हाट? इट इज स्पेस। स्पेस देते हैं हम अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को। पति पत्नी के रिश्ते में या कभी कभी रिश्तों में हम बोलते हैं कि स्पेस दे दो, सब कुछ हो जाएगा। तो ये जब हम टाइम देते हैं, स्पेस देते हैं, तो सब कुछ ठीक हो जाता है। यानी स्पेस एलिमेंट ऐसा है कि वो सब कुछ ठीक कर देता है। कभी कभी हमें जब खाली चीजों को छोड़नी होती है, दैट्स इट, और ये स्पेस एलिमेंट सब ठीक कर देता है। यही स्पेस एलिमेंट हमें हील भी कर देता है। जब कभी हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम खराब है तो हम उसको स्पेस देते हैं, वो पूरी तरह से हील हो जाता है। हमारे सारे ऑर्गन्स के बीच में स्पेस होता है। इवन हमारे सेल के अंदर जो भी जितने भी छोटे छोटे जो ऑर्गन्स होते हैं, जो खाली माइक्रोस्कोप में ही देखा हुआ है, हमने देखा भी नहीं है, नरी आंख से देख भी नहीं सकते हैं, बट वहां पे सब जगह पे ये स्पेस है। स्पेस की वजह से ही सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। इतना डीप मीनिंग होता है स्पेस का, हमें नहीं पता था। Thank you for the space element, for the ether that gave us life, that gives us everything we want. यही स्पेस में ही हम विजुलाइज करते हैं सब चीजें, और यही स्पेस में हमारे सपने पूरे होते हैं। Thank you for the space element. ये पांचों तत्वों का बहुत बहुत शुक्राना। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो यही पांचों तत्वों से बने हुए हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। थैंक यू। ओके, आज हम जो ये ईएफटी करेंगे, तो ईएफटी आज हम पूरा इसके ऊपर करेंगे। सबको, आप लोगों को जैसे डाउट होता है, हम हमारे वर्ड्स की कभी कभी कदर नहीं करते हैं, जैसे हम बोल देते हैं तो हमें खुद को ही हमारे वर्ड्स की कदर नहीं होती है। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी में से कभी कभी एस्केप करते हैं। जैसे अगर हमें हुआ है, हमें आज मान लो हमारा बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन है, बट हम वो पेन के साथ इतना आइडेंटिफाई हो गए हैं, वो पेन के साथ इतना हम जुड़ गए हैं कि वो पेन में से हमें बाहर ही आना पसंद नहीं है। हम सबको भी यही बताते कि नहीं ये है वो है, बट जैसे ही आप उसके साथ डिसआइडेंटिफाई हो गए, अभी क्या हो रहा है, वो पेन को ही आप ज्यादा एनर्जी दे रहे हो, पेन को ही इंपॉर्टेंस दे रहे हो। जैसे ही आप डिसआइडेंटिफाई होके देखेंगे, तो वहां पे आप अपनी हीलिंग को ज्यादा एनर्जी देंगे, ना कि पेन को। बट अभी वो कर रहे हैं, हम जाने अनजाने वो करते ही हैं। हम बोलते नो, आई एम नॉट गुड, मेंटली इल, और आई एम इमोशनली वेरी वेरी अपसेट और वॉट एवर, बिकॉज यू चूज टू बी अपसेट, यू चूज टू स्टे इन दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट। आपको आपका आपका जो माइंड है वो बार बार आपको वहां पे लेके जा रहा है, बिकॉज माइंड इज फीलिंग कंफर्ट इन दैट जोन। बट जब तक आप अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे, आप उसमें से बाहर आने का डिसाइड नहीं करोगे, तब तक माइंड आपको वहीं पे ही रखेगा। आपको ही डिसीजन लेना है कि नहीं, आई विल नॉट आइडेंटिफाई विद दिस पेन, आई विल नॉट आइडेंटिफाई विद दिस इमोशनल स्टेट, बिकॉज आई एम द क्रिएटर एंड आई कैन कम आउट। मैं जब भी चाहती हूँ मैं बाहर आ सकती हूँ। आई डोंट हैव टू आइडेंटिफाई विद दिस। जो भी आपकी बॉडी की कंडीशन है, आप सब कुछ कर सकते हो, आपको खाली एक्सेप्ट करना है।
तो एक्सेप्टेंस नहीं आता, उसके ऊपर आज हम पूरा ईएफटी करेंगे। यानी इन शॉर्ट के ईएफटी के ऊपर भी कई कई लोगों को डाउट्स हैं कि ईएफटी क्या काम करता है कि नहीं, तो वो डाउट्स के ऊपर भी आज हम ईएफटी करेंगे। ओके, सो लेट्स डू इट। इवन दो मुझे कभी कभी इस प्रकार के विचार आते हैं कि क्या ये ईएफटी टेक्निक काम करती है, क्या ये खाली टैप करने से सब कुछ हो जाता है, क्या वो हमारे सबकॉन्शियस में चला जाता है। इस प्रकार के ख्याल मुझे आते हैं और मेरा जो फेथ है वो डगमगा जाता है। मैं अपनी चीजों में इतनी उलझ जाती हूँ कभी कभी कि मुझे सॉल्यूशन की जगह पे मैं प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा एनर्जी दे देती हूँ। बट I still completely and fully love and honor and accept myself. हाँ, मेरे अंदर ये सब आ जाता है कभी कभी, but I release those negative beliefs and negative thoughts. And I truly and completely accept and love myself. मैं अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूँ। Now take some deep breaths. And let's start our sequencing. Even though I feel like giving up sometimes, मैं अपने प्रॉब्लम्स के अंदर इतना उलझ जाती हूँ कि मुझे लगता है कुछ काम नहीं करता, मेरा फेथ कंप्लीटली डगमगा जाता है। और इसीलिए मैं जो सिचुएशन है उसमें से बाहर आ ही नहीं पाती। But I still truly and completely love and honor myself. I truly and completely accept myself. कभी कभी मुझे लगता है क्या ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स काम करती है कि नहीं। मैं अपने प्रॉब्लम्स के अंदर इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती हूँ, आइडेंटिफाई हो जाती हूँ। But now I allow myself to relax. मैं अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करती हूँ। I allow myself to be calm. कभी कभी मैं कमिटमेंट्स दे देती हूँ, मैं अपने अपने वर्ड्स दे देती हूँ और उसके ऊपर खरी नहीं उतर पाती और मुझे बहुत ज्यादा गिल्टी महसूस होती है। But I still truly and completely love and accept myself. I truly and completely love and honor myself. मैं जैसी भी हूँ, मेरे अंदर ये सब कुछ है, नेगेटिव पॉजिटिव, बट मैं अपने अंदर की पॉजिटिविटी पे ध्यान देती हूँ। मैं अपने अंदर की डिविनिटी को, उसके ऊपर ध्यान देती हूँ और अपनी डिविनिटी से, अपने जो डिवाइन पावर से उसको अपनी हेल्प, अपने सपोर्ट के लिए हमेशा बुलाती हूँ। और जब कभी भी मैं किसी भी प्रॉब्लम में जब जाती हूँ, तुरंत ही उसमें से बाहर आके
अपने आप को वो एक दिव्य शक्ति को सौंप देती हूँ पूरी तरह से। I allow the divine to take over. I allow the divine to take over and heal my body, heal my emotions. जो भी इमोशंस की वजह से मेरी कोई भी ये सिचुएशन आई है, वो सारे इमोशंस को मैं बाहर निकालती हूँ, जाने देती हूँ। ये जो भी इमोशंस की वजह से मेरा फेथ डगमगा जाता है, मेरी आस्था जब डगमगा जाती है, ऐसे सारे इमोशंस को, ऐसे सारे थॉट्स को मैं पूरी तरह से जाने देती हूँ। और मेरा ये विश्वास, मेरी आस्था दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मैं अपनी लाइफ की पूरी जिम्मेदारी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेती हूँ। मेरे वर्ड्स की, मेरे कमिटमेंट की बहुत ज्यादा वैल्यू है, और ये वैल्यू मैं पूरी तरह से समझती हूँ। और मैं अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स होने के लिए सम्मति देती हूँ। I allow myself to completely and fully relax and calm down. और ये मेरा पूरा जीवन में डिविनिटी को सौंप देती हूँ, बिकॉज मुझे पता है यही शक्ति हमेशा मेरा साथ देती आई है, और आगे भी यही शक्ति हमेशा मेरा साथ देती है। और ये जो भी बाहर में स्ट्रगल्स करती हूँ, बट मुझे पता है जब भी मैं अंदर जाके देखती हूँ, मैं अंदर को कुछ चीजें बदलती हूँ अपने विचारों में, बाहर तुरंत ही चीजें बदलने लगती है, अपने आप बदल जाती है। और मेरा जो भी फेथ, कभी कभी जो विश्वास है, आस्था है, मेरी डगमगा जाती है, बट आई स्टिल चूज टू लव एंड ऑनर माई सेल्फ। I choose to love and accept myself exactly the way I am. मुझे पता है मेरे अंदर ये सारी बुराइयां हैं, but I still choose to love and honor myself. And I release all these negative beliefs, जो मेरे अंदर ये मान्यताएं भरी हुई है बचपन से लेके आज तक, या ये जो भी लिमिटेशंस मेरे अंदर है, वो सबको मैं जाने देती हूँ। And I truly and completely choose to love and honor myself. And I am the creator of my life. I know that I am the creator of my life because God made me in His image. मुझे ऑलमाइटी ने उनके ही इमेज में बनाया है। उन्होंने मुझे वो सारी शक्तियां दी है जिसमें मैं ही अपनी लाइफ का निर्माण मैं खुद करती हूँ। मुझे बस उनके अंदर आस्था रखनी है, दैट्स इट। और जितना मैं धीरे 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 डिवाइन के ऊपर छोड़ती जाती हूँ, इतनी ही मेरी लाइफ और आसान होती जाती है। एंड आई फ्लो थ्रू माई डेज इजीली एंड एफर्टलेसली। मैं जितनी हीलिंग उनके ऊपर छोड़ देती हूँ, मैं एक्सेप्ट कर लेती हूँ मेरी कंडीशंस, और पूरा डिवाइन के ऊपर अपनी हीलिंग छोड़ देती हूँ, वही मोमेंट से मैं अच्छा फील करने लगती हूँ। एंड आई ट्रूली एंड
completely honor myself, accept myself. I respect myself. I value and trust myself. अभी मेरा खुद का ही विश्वास खुद के ऊपर कभी कभी डगमगा जाता है और मुझे अच्छा नहीं होता है फील जब भी ये होता है. But that's okay. I allow myself to feel the way I feel. And I truly and completely love and honor myself. I truly and completely accept the way I am and the ways I am not. मैं जैसी हूं या जैसी भी नहीं हूं, मैं कुछ करती हूं या नहीं करती हूं, सभी सिचुएशंस में अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करती हूं. जो भी सिचुएशन है वो बदल सकती है और मेरा भरोसा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है. There is a power within me which can take care of everything. I just need to loosen up myself. That's it. That divine power is always with me, guiding me, supporting me, protecting me. And it supplies all my needs in abundance. जो भी मुझे चाहिए मेरी बॉडी को हील करने के लिए या मुझे जो भी लाइफ में जो भी चीजें चाहिए मेरे सपनों को पूरा करने के लिए, वो सारी चीजें डिवाइन शक्ति मुझे प्रदान करती है. And so it is, and so be it. Okay, now let's do हमारा जो भी ये डॉलर बिल या रुपी का जो बिल है उसको पूरी तरह से दिल से लगा के thank you, thank you, thank you for all the money, prosperity, wealth, success, everything, whatever I've been given throughout my life. Thank you so much for it. पैसों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अभी अपना जो चेक है उसको लेके आपको पूरी तरह से विजुअलाइज करना है कि वो पूरा हो चुका है. जो चीज आपको चाहिए वो पूरी तरह से पूरी हो चुकी है, आपको मिल गई है और आप शुक्राना कर रहे हो ऑलमाइटी का. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू. Now let's say some affirmations in the mirror and then we will proceed to our book. So thank you, Olivia, for doing everything. Whatever you do or whatever you don't do, I still love you. I love you for everything. I really, really love you and I approve of you. I love you and I approve of you. I go through my days effortlessly. I flow through my days easily and effortlessly. मेरे सब काम इतने आसानी से हो जाते हैं because you are with me always. अपनी आंखों में आंखें डाल के बोलिए ये सब चीजें. You are more than creative than you think you are. You are more creative. You have abundance of creative ideas. You have abundance of creativity in you. You just need to come out. तू हर चीज में क्रिएटिविटी करती है, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया. थैंक यू एंड आई लव यू. अभी अपने आप को पूरी तरह से हक कीजिए. Olivia, you are powerful. You are a magnificent being of life.
You are the wise, you are the great, you are the best creation of God. Yes, you are the best creation of God. And you can be, do and have anything that your heart desires. You can be, कुछ भी बन सकती है, कुछ भी कर सकती है, और जो कुछ भी तुझे चाहिए वो सब कुछ इजीली तुझे मिल सकता है, because you are so powerful and intelligent than you think you are. Okay, now आप पूरे दिन में जितनी बार भी आप मिरर के अंदर जाते हो, अपने आप को अच्छी अच्छी बातें बोलना है आपको. आज हम होपोनोपोनो को मिस कर देते हैं, करेंगे कल उसके बारे में ही. जैसे हमने आज ये 5 तत्वों का जिस तरह से बहुत डिटेल में शुक्राना किया, कल थोड़ा सा डिटेल में हम होपोनोपोनो करेंगे ये 5 तत्वों के लिए. जो भी हमने कंप्लेंट्स की होगी उसके लिए हम पूरी तरह से दिल से माफी मांगेंगे. बट टुडे इट्स ऑलरेडी बिन. मुझे इसलिए सब कुछ कम कट शॉर्ट नहीं करना है जस्ट बिकॉज वी डोंट वी हैव लेस टाइम. मुझे कट शॉर्ट नहीं करना है. अगर शुक्राना करना है तो पूरी तरह से ही शुक्राना करना है. इसलिए फिर दैट्स ओके. तो नाउ लेट्स रीड अवर पावर ऑफ नाउ. शुक्राना बहुत अच्छा करा है अलीफिया सिस्टर. थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच. थैंक यू कनिका जी, थैंक यू सो मच. मुझे लगता है कि लिखने से भी ज्यादा जब हम शुक्राना बहुत दिल से करते हैं उसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. जब दिल से हम फीलिंग्स के साथ जब हम ये सब चीजें बोलते हैं, जैसे आज हमने जिस तरह से शुक्राना किया, कम से कम 50 शुक्राना कर लिया होगा हमने सबने साथ में मिलके. तो यू वोंट बिलीव हाउ मच पावरफुल दिस इज. बहुत पावरफुल होता है ये जब हम सब साथ में मिलके दिल से, जब हम फीलिंग्स के साथ ये शुक्राना करते हैं. आप लिख के, जो भी हम लिख के करते हैं या जो भी करते हैं, मुझे लगता है कि उससे भी बहुत ज्यादा पावरफुल होता है जब हम सब साथ में मिलके ये शुक्राना करते हैं. डोंट यू थिंक सो? लाइक बहुत ज्यादा पावरफुल. इसीलिए मैं आप सबको बोलती हूँ कि प्लीज रोज आइए एंड प्रैक्टिस कीजिए. आप देखोगे बहुत जल्दी आप अपनी लाइफ में सब चीजों में बहुत जल्दी आप सुधार देखोगे. मतलब सुधार इन द सेंस के इम्प्रूवमेंट्स देखोगे. आपको ही वो नोट करना होगा, बट होंगे सटल इम्प्रूवमेंट्स जब मैं नोट करती हूँ अपनी लाइफ के अंदर. कल एक ऐसी सिचुएशन आई थी जो थोड़ी सी नेगेटिव थी, यानी यहाँ पे नहीं, मेरे किसी के साथ आई थी सिचुएशन, और मैं यहाँ पे मुझे इतनी आस्था है कि हाँ, अगर मैं ये सिचुएशन के लिए अगर ये चीजें करूंगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मैं ले लेती हूँ तो ये सिचुएशन सुधर जाएगी. यहाँ पे नहीं हो रही है, सिचुएशन कहीं और पे हो रही है, बट मैंने उसकी जिम्मेदारी ले ली. मैंने उस टाइम पे होपोनोपोनो स्टार्ट कर दिया, मैंने शुक्राना लिखना स्टार्ट कर दिया. मैंने यहाँ पे, आप ये मेरी जो डायरी है इसके अंदर मैंने तुरंत शुक्राना लिखना चालू कर दिया. तो मैंने जितना शुक्राना लिखती गई, होपोनोपोनो की पूरी जो प्रेयर होती है वो करती गई, क्योंकि भले वो सिचुएशन मेरे साथ नहीं हुई थी पर मेरे किसी अपने के साथ हुई थी, बट वो सिचुएशन को पूरी तरह से मैंने अपने ऊपर जिम्मेदारी उसकी ले ली. भले वो सिचुएशन मेरे साथ नहीं हुई थी, बट आप लोग नहीं मानोगे, जैसे ही मैंने ये सब कुछ किया, जो सिचुएशन 3 घंटे से नहीं कुछ उसका हुआ था, तुरंत ही वो सिचुएशन रिजॉल्व हो गई. और वहां पे कुछ भी ऐसा नहीं करना पड़ा कि कुछ ऐसा नहीं था जो, मतलब जो बोलते हैं ना कि जो एंड इजी आसानी से हो जाता है. कभी कभी हमारी लाइफ में मुसीबतें आती है, बट व्हेन इट एंड्स वेल तो ऑल इज वेल व्हेन इट एंड्स वेल, ऐसा हम बोलते हैं. उसी तरह से सब कुछ शांति से खत्म हो गया है. जो लास्ट में एंड रिजल्ट इसका आया वो एकदम बढ़िया आया, जो भी एंड रिजल्ट था. तो मैं यहाँ पे क्यों बता रही हूँ, जैसे जैसे आपकी पावर बढ़ती है, आप अपने ही लाइफ में तो कर ही पाओगे, अपनों की लाइफ में भी आप ये कुछ होगा, सिचुएशन होगी तो आप उसको भी बदल पाओगे. इसीलिए आपको बार बार अपने आप को पावर ऑफ नाउ में लेके आना है. हमेशा
ये सारी टेक्निक्स आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। EFT की टेक्निक है, होपोनोपोनो की टेक्निक है। जैसे ही कोई सिचुएशन आती है, सबसे पहले उसका होता है कि जिम्मेदारी आप कहीं पे भी ब्लेम नहीं कर रहे हो, पूरी तरह से अपने ऊपर ले लेते हो। ये उसका फर्स्ट स्टेप होता है। कई लोग करते हैं होपोनोपोनो, पर कहीं ना कहीं दिमाग में तो अभी भी वही चल रहा है कि यार ऐसा हुआ, या कुछ ना कुछ ब्लेमिंग या कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म, मुझे नहीं पता क्या चल रहा होगा, कोई वही डर चल रहा है। बट जैसे ही आपने जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, सिचुएशन को एक्सेप्ट कर लिया, जिम्मेदारी ले ली, फिर आप उसको बदल पाओ। तो जैसे कल मैंने कि हाँ, मैंने ही कहीं पे कुछ ऐसा बोला होगा, अगर मेरे बोलने से या मेरे कुछ ऐसा सोचने से या कुछ भी ऐसा करने से अगर ये सिचुएशन मेरे किसी के साथ आई है, तो मेरे सामने ही आई है ना सिचुएशन, तो उसकी पूरी जिम्मेदारी मैंने लेके होपोनोपोनो स्टार्ट कर दिया। और मैं जब होपोनोपोनो करती हूँ तो मैं आईने के सामने करती हूँ, आंखों में आंखें डाल के, तो वो बहुत ही पावरफुल हो जाता है। तो यस, इट वाज सो पावरफुल, सो इफेक्टिव। सनसेट के टाइम पे ही था, और सब कुछ जैसे ही किया तुरंत फोन आता है कि सब कुछ रिजॉल्व हो गया। सो इट इज सो अमेजिंग, सो अमेजिंग द वे इट वर्क्स। मुझे इतना विश्वास, मेरा विश्वास, आस्था धीरे धीरे एवरी डे बढ़ती जाती है जब भी मैं ये करती हूँ। तो यस हकीम, आपका कोई क्वेश्चन है? मुझे एक शेयरिंग था। हाँ, मेरा तो थिंकिंग चेंज हो गया लगभग टोटली 90%, और मैं दूसरों का भी अभी चेंज करने लगता हूँ। मेरे अंदर डिवाइन पावर ऐसा आ गया कि मालूम नहीं मैं क्या बोलता हूँ सामने वालों को, फिर मेरे को मालूम पड़ता है कि मैंने क्या इतना ज्यादा पॉजिटिव उसको बता दिया। जब दूसरा आदमी तीसरे आदमी की कंप्लेन करता है, दोनों अननोन पर्सन रहते हैं सामने वाले, तो भी वो दूसरे आदमी को मैं समझा देता हूँ कि भाई क्या हो गया, उससे मिस्टेक हो गई, जानबूझ के तो नहीं किया, आज भी ऐसा ही हुआ उसको। फिर मेरे को लगा कि यार मैं इतना ज्यादा उसको कैसे पॉजिटिव दे रहा हूँ, दोनों पर्सन को, दोनों बंदे को पहचानता भी नहीं, फिर भी अंदर से मैं बोल देता हूँ। फिर मेरे इतना बोलने के बाद मुझे होता है कि मैं कैसे बोल गया, यानी अभी ये डिवाइन पावर ही हो सकता है। ऑफ कोर्स ऐसा मुझे फील हो रहा है। तो बहुत ही चेंजेस हो गए हैं मेरी लाइफ में तो। यानी थिंकिंग और देखो यहाँ पे, हाँ, एक भले अनजान पर्सन है, पर कहीं ना कहीं हम सब एक ही सोर्स में से आए हैं। भले वो अनजान है, बट कहीं ना कहीं पे आपके अंदर की जो डिविनिटी है, उसको तो पता है ना कि हम वही सोर्स से हम आए हुए हैं। तो वो हमारे अंदर जो भी काइंडनेस है, कंपैशन है, वो इसी की वजह से होता है। तो यस, सो अमेजिंग, थैंक यू फॉर शेयरिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू। How nice, how nice. Okay, so let's now read. I think हमने यहाँ तक तो रीड किया था कल, zen वाला। अभी आज यहाँ से रीड करना है। The now is also central to the teaching of Sufism, the mystical branch of Islam. जो सूफिज्म का, जो इस्लाम का ब्रांच होता है, वहां पे भी ये बोला गया है, Sufis have a saying, the Sufi is the son of time present. जो सूफी है वो किसका बेटा है या सन? तो उसको बोलते हैं कि टाइम जो प्रेजेंट होता है उसी का बेटा है सन। जो सन है उसी का बेटा है सूफी। सूफी इज द सन ऑफ टाइम प्रेजेंट। एंड रूमी, द ग्रेट पोएट एंड टीचर ऑफ सूफिज्म, डिक्लेयर्स, past and future wheel God from our sight, burn up both them with fire. ये बहुत ही डीप लाइन सूफी ने, मतलब ये रूमी ने बोली है, जो ग्रेट पोएट थे सूफिज्म के अंदर, उन्होंने ये लाइन बोली है कि पास्ट एंड फ्यूचर व्हील गॉड फ्रॉम अवर साइट। यानी अगर आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं हो, पास्ट में या फ्यूचर में लगे हो, आपकी थिंकिंग हमेशा या तो पास्ट में चल रही है या तो फ्यूचर का सोचने में लगी हुई है। तो जब जब भी आप ये दोनों के अंदर होते हो, आप अपने साइट में, यानी कि आप अपने तरफ से गॉड का प्रेजेंस फील नहीं कर पाते हो, देख ही नहीं पाते हो। बट जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, आप वो प्रेजेंस फील कर पाते हो। तो सब कुछ जो भी है वो प्रेजेंट मोमेंट के अंदर ही है। अगर जो बोलते हैं कि भगवान को पाना है, या मतलब या जो भी ऑलमाइटी को पाना है, जो भी बोलते हैं कि हमें अगर जन्नत में जाना है या जो भी, वो सब कुछ
यहाँ पे ही अवेलेबल है, और वो कौन से मोमेंट में अवेलेबल है? नाउ मोमेंट में अवेलेबल, यही इस मोमेंट में, इस पल में वो अवेलेबल है। इसके पास्ट का पल उसमें भी नहीं है, उसके प्रेजेंट, यानी अगर मैं अभी यहाँ पे हूँ, अभी ये 1 सेकंड के पहले जो मोमेंट था वो प्रेजेंट मोमेंट नहीं है। या अगर मैं ये सोच रही हूँ कि 1 सेकंड के बाद का जो मोमेंट है वो भी फ्यूचर बोलेंगे उसको, बट ये मोमेंट अभी मैं जब ये बात कर रही हूँ यही मोमेंट है, प्रेजेंट मोमेंट इसको ही बोलेंगे। जब हम ये टाइम का कॉन्सेप्ट समझने लगते हैं धीरे धीरे, हम बहुत ही अच्छी तरीके से धीरे धीरे समझने लग जाएंगे कि जो भी हमारे पास है वो प्रेजेंट मोमेंट है और कुछ भी नहीं है। और ये हम इतने यानी ये पूरी जर्नी ही इसी के बारे में है। यानी हम अभी तो इतना वो नहीं है कि हम प्रेजेंट मोमेंट में 100% रहने लगे, बट हाँ, हम सीख रहे हैं प्रेजेंट मोमेंट में अपने आप को लाना। Mr. Eckhart, the 13th century spiritual teacher, summed it up beautifully. Time is what keeps the light from reaching us. There is no greater obstacle to God than time. जैसे ही हम टाइम के बारे में सोचने लगते हैं, फ्यूचर या पास्ट के बारे में, तो वो बहुत ही बड़ा हमारे अंदर एक ऑब्स्टिकल है, एक तरह का समझ लो ब्लॉक है, रोड ब्लॉक है, जो हमें वो ऑलमाइटी से मिलने से रोकता है। बट जैसे ही हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, हम वो प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। जो कॉन्शियसनेस हमारे अंदर है, जो हमारे अंदर ही जो शक्ति है, उसको हम ओनली एंड ओनली प्रेजेंट मोमेंट में फील कर पाएंगे। अदरवाइज हम हमारी पूरी लाइफ पास्ट एंड फ्यूचर, कभी आपने सोचा है जैसे हम ट्रांस में चले जाते हैं कि अचानक से कोई बोलता है अरे कहाँ खो गई थी, हम ऐसे खोए हुए होते हैं, कोई एकदम से हमें बुलाता है, हमें पता ही नहीं होता, हम इतने ट्रांस स्टेट के अंदर होते हैं, यानी इतने अपने विचारों में खो जाते हैं कि हमें आसपास क्या हो रहा है उसका कुछ भी पता नहीं है। तो ये सब चीजें अब तक तो हमें ये भी नहीं पता था कि हम ट्रांस स्टेट में होते हैं। मोस्टली 99.99% ऑफ द टाइम, ऑलमोस्ट 100% ऑफ द टाइम हम ट्रांस स्टेट में ही जीते हैं, किसी न किसी ख्यालों में जीते रहते हैं। इसने ये बोला था, एक ख्याल आता है उसके पीछे माइंड हजारों ऐसे सेम तरह के ख्याल लेके आता है। अगर आपने इंटरवीन नहीं किया तो वो ख्याल चलते ही रहेंगे, बट आपने जैसे ही सोचा ओ एम आई अवेयर, तो वहां पे ही उसका जो पैटर्न था वो तुरंत ही स्टॉप हो जाएगा। तो लेट्स अगेन pause for 1 minute and अंदर एब्जॉर्ब करते हैं कि अगर टाइम नहीं है तो क्या है, प्रेजेंट मोमेंट है। अगर प्रेजेंट मोमेंट है तो क्या है, वही शक्ति को हम फील कर पाएंगे, जिसको हम अल्लाह, खुदा, भगवान जो भी बोलते हैं। वो शक्ति को अगर हमें पाना है तो ये प्रेजेंट मोमेंट में ही वो शक्ति को हम पा सकते हैं। कोई और टाइम, जितना हम टाइम के बारे में सोचेंगे इतना ही हम वो शक्ति से दूर होते हैं। सो लेट्स एब्जॉर्ब दिस। Okay, let me read further from here. Accessing the power of the now. A moment ago, when you talked about eternal present and the unreality of the past and future, I found myself looking at tree outside the window. I had looked at it a few times before, but this time it was different. The external perception had not changed much, except that the colors seemed brighter and more vibrant. But there was now an added dimension to it. This is hard to explain. I don't know how, but I was aware of something invisible that I felt was the essence of that tree, its inner spirit, if you like. And somehow
I was part of that. I realize now that I hadn't truly seen the tree before, just a flat and dead image of it. When I look at the tree now, some of that awareness is still present, but I can feel it slipping away. You see, the experience is already receding into the past. Can something like this ever be more than a fleeting glimpse? तो यहाँ पे किसी ने ये चीज पूछी है एकार्ट टोल से कि हाँ, जैसे आप ये प्रेजेंट मोमेंट की बात करते हो, तो मैं जैसे ही ये ट्री को अभी मैंने देखा, मैं पहले देखता था उसको, बट एक डेड की तरह, एक डेड ट्री को तरह मैं देखता था जैसे ही, बट जैसे ही मैं अभी प्रेजेंट मोमेंट में उसको देखता हूँ, तो उसके कलर्स, उसके सब, उसकी जो इनर स्पिरिट को मैं फील कर पा रहा हूँ, उसके कलर्स को और ब्राइटली मैं देख पा रहा हूँ। यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि पहले कभी मैंने इस तरह से ट्री को नहीं देखा जिस तरह से मैंने आज पहली बार उसको महसूस किया। बट जो वो एहसास भी था, वो भी एक फ्लीटिंग एहसास था। मतलब वो अभी वो एहसास क्या है, पास्ट में चला गया। अभी 2 मिनट पहले वो एहसास था, बट वो एहसास अभी नहीं है। यानी जो क्षण भंगुर के लिए वो प्रेजेंट मोमेंट थी, बट नाउ वो पास्ट बन चुकी है। तो क्या ऐसा भी होता है? ऐसा किसी ने मिस्टर एकार्ट से पूछा। अभी देखते हैं उन्होंने क्या आंसर दिया ये चीज का भी। तो आपने भी देखा होगा कि जब आप प्रेजेंट मोमेंट में कभी कभी आ जाते हो, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे फ्रंट गार्डन में रोजेस लगे हुए थे, तो ठीक है, मतलब रोजेस लगे हुए हैं, मैं आते जाते देखती थी। बट कभी कभी मैं अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में, जब ऑलमोस्ट सनसेट का टाइम होता था, तो जैसे उस टाइम पे थोड़ा समर था, तो समर या फॉल का टाइम होता है, तो इतनी ज्यादा ठंड बाहर नहीं होती है, तो मैं हमेशा जाके वहां पे बैठती थी सनसेट के टाइम पे। और मैं खाली ऐसे बैठ के ही खाली जो मेरे रोजेस थे उसको देखती रहती थी, यानी थोड़ी क्षण के लिए। तो मैं वैसे तो मेरे थॉट्स चल रहे, आ रहे जा रहे, आ रहे जा रहे, बट वहां पे एक आध मोमेंट ऐसा होता था जो मैं रोज को पूरी तरह से, उसकी ब्यूटी को पूरी तरह से फील कर पाती हूँ कि इसके अंदर भी वही लाइफ है जो लाइफ मेरे अंदर है। वो क्षण भंगुर के लिए ही होता था, बट वो एहसास एक अलग ही प्रकार का एहसास होता था। अब तो वो मेरे जो, मतलब जैसे ही ठंड स्टार्ट होती है तो सारे ट्रीज सब कुछ गिराने लगते हैं, सब लीव्स वगैरह सब कुछ फॉल हो जाता है, वो एकदम जैसे हाइबरनेटिंग में चले जाते हैं जो जो ट्रीज, और कोई कई सारे ट्रीज मर जाते हैं जैसे ही विंटर आता है। तो अभी तो कोई रोजेस नहीं है बाहर, बट मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ जहाँ जिस टाइम पे वो इतने सारे रोजेस थे, इतने प्यारे से। और आप बात नहीं मानोगे, मैं जितना रोजेस को प्यार करती थी, उसको चूमती थी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई देखता है, मेरे नेबर्स देखते, इट डजंट मैटर टू मी। तो मैं उसको बहुत चूमती थी, बहुत प्यार करती थी वो रोजेस को। इसके साथ कांटे भी लगे होते हैं रोजेस के साथ, पता है ना, उसके थॉर्न्स भी होते हैं, बट आई स्टिल लव टू टेक इट इन माय हैंड, एंड उसको मैं किस करती थी। मैं जितना उसको प्यार, मैंने कुछ नहीं और दिया, नहीं कभी कभी पानी भी नहीं दे पाते थे, क्योंकि कुछ ना कुछ लाइफ में होता था, मतलब हम बिजी हो जाते हैं ये वो, बट तो भी इतने सारे रोजेस आते थे मेरे प्लांट्स के अंदर, ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दैट लव दैट वाज प्रेजेंट इन दैट पर्टिकुलर क्षण। जो भी क्षण होता था उसमें वो प्यार प्रेजेंट होता था, उसकी वजह से वो और ब्लूम करते ही रहते थे, इतने सारे रोजेस। उनको देख के मैं इतना खुश होती थी। मेरे पास अभी भी उनके बहुत सारे पिक्चर्स हैं, मैं आपको वैसे तो कभी कभी सेंड करती थी, आपको याद भी होगा, जो जो लोग मेरे साथ बहुत टाइम से जुड़े हुए उनको याद होगा। एनीवेज, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर क्या दिया, लेट्स रीड। तो यू वर फ्री ऑफ टाइम फॉर अ मोमेंट, you moved into the now and therefore perceived a tree without the screen of the mind। यानी वहां पे माइंड एक क्षण भंग के लिए चला गया था, इसीलिए आप वो ट्री को इस तरह से परसीव कर पाए जिस तरह से वो है। The awareness of being became part of your perception। With the timeless dimension comes a different kind of knowing, one that does not kill the spirit that lives within every creature and everything।
इवन ये जो लैपटॉप है इसके अंदर भी लाइफ है, ये माउस है उसके अंदर भी लाइफ है, बट वो लाइफ हम क्यों नहीं फील कर पाते? बिकॉज माइंड हमेशा हमें घेरे हुए रहता है, वो प्रेजेंट मोमेंट में हम कभी भी होते नहीं है। पर जैसे ही भले क्षण के लिए भी हम जब प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं तो उसका प्रेजेंस हम फील कर पाते हैं, उसके अंदर की लाइफ है, जीवन है उसके अंदर, वो उसको फील कर पाते हैं। A knowing that does not destroy the sacredness and mystery of life but contains a deep love and reverence for all that is. तो जैसे ही आप प्रेजेंट मोमेंट में आते हो, अगर ये मैंने रोजेस की बात की, तो जैसे ही मैं प्रेजेंट मोमेंट में आती हूँ, अपने माइंड के थॉट्स को एक क्षण के लिए अगर वो चले जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है? द डीप लव, द डीप रेवरेंस, यानी रेवरेंस मतलब डीप, एक अलग तरह का रिस्पेक्ट ये लाइफ के लिए, जो मिस्ट्री ऑफ लाइफ है उसका सैक्रेडनेस, यानी उसके अंदर जो भव्यता है, उसके अंदर की जो विशालता है वो हम देख पाते हैं, जो हम माइंड का अगर लेंस लगा हुआ है तो वो हम नहीं देख पाते। बट माइंड का जैसे ही लेंस निकल जाता है, हम सभी चीजों के एकदम मोमेंट के अंदर आ जाते हैं, सभी चीजों को जैसी है उस तरह से उसको देखने लगते हैं। A mind cannot know the tree, it can only know facts or information about the tree. यानी ट्री ऐसा होता है, ट्री की ये खूबियां होती है, वो इस तरह से ऑक्सीजन देता है, ये सब हम माइंड से ही समझते हैं। बट माइंड हमको ये फील नहीं करवा सकता जो हम फील करते हैं अगर हम माइंड को थोड़ी देर के लिए बाजू में रख दें। Mind cannot know you, only labels, judgments, facts and opinions about you. Being alone knows directly. तो जैसे ही आप अगर ये शक्ति को कभी कभी भले क्षण भंगुर के लिए भी अगर आपने ये शक्ति को फील किया है, तो वहां पे माइंड नहीं है। अगर माइंड तो हमेशा क्या करता है, माइंड क्या 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 काम होता है? जजमेंट करना, ओपिनियंस को देखना, फैक्ट्स एंड फिगर्स को देखना, वो माइंड का काम होता है। उसको लेबल देना, अगर ट्री को भी अगर मैं ऐसा बोल के लेबल दे रही हूँ कि वाह ट्री इतना सीरीन है, तो ये भी माइंड का ही काम होता है। वो प्रेजेंट हमारे अंदर जो कॉन्शियसनेस का जो प्रेजेंस है उसका काम नहीं होता है ये लेबलिंग करना, ये माइंड का काम होता है। यानी आप देखोगे जहां जहां पे आपको ऐसा भी लगता है ना कि कॉन्शियसनेस है, वहां पे भी एक्चुअली माइंड ही होता है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जहाँ पे है वहां पे एक अलग ही तरह का प्यार, एक अलग ही तरह का कुछ आप देख पाओगे, वो माइंड के लेंस के साथ हम नहीं देख पाते हैं। तो लेट्स रीड फ्रॉम हियर टुमारो, आई थिंक एवरीबडी नीड्स टू गो। सो कल से हम यहाँ से पढ़ते हैं वापस। देखिए मुझे पता है ये बुक आप सबको कहीं ना कहीं से थोड़ी सी ऊपर से जा रही होगी, या मुझे नहीं पता आप क्या महसूस करते हो, बट प्लीज बी विथ इट, उसके साथ बने रहिए। मैं आपको गारंटी देती हूँ एट द एंड ऑफ द बुक कुछ तो आपको जरूर यहाँ से लेके जाओगे, और जो लेके जाओगे वो बहुत ही अद्भुत होगा आपके जीवन को जीने के लिए। तो ये बुक के साथ बने रहिए, उसको पूरी तरह से सरेंडर कर दीजिए। जो भी ये बुक बता रही है उसको धीरे 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 समझना ट्राई कीजिए, भले माइंड से ही समझ लो, थोड़ा थोड़ा समझो, और अपने आपको एक ही चीज करनी है, बार बार आपको अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना है, दैट्स इट। लॉजिकली तो ये सब कुछ हमने समझ लिया, बट उसको अप्लाई करना है लाइफ के अंदर, तो अप्लाई कैसे करेंगे? उसको बार बार प्रेजेंट मोमेंट में लाना है, उसको पूछेंगे what is my, let me wonder what my next thought is, यानी let me see, मुझे देखने दो कि क्या मेरा अगला थॉट क्या होगा। इस टाइप के मोमेंट में अपने आप को लाइए, अपने आप से पूछे am I aware। जैसे ही कोई भी ऐसा पल आता है जहां पे आप बहुत ज्यादा माइंड के ट्रैप में आ चुके हो, तुरंत ही अपने आप से पूछे am I aware। तो आपकी जो माइंड की जो भी वहां पे चल रही होगी, बहुत बहुत ज्यादा ही कभी कभी चलता होता है, वो तुरंत ही वहां पे रुक जाएगा। तो आपका काम इतना ही है अभी, अपने आप को प्रेजेंट मोमेंट में लाना, बार बार वो आपको ही करना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं कर सकता। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। एंड यस, मैं आपको बार बार बोलूंगी कि पहले से
आखिरी तक बने रहिए ये क्लास के अंदर, बहुत जरूरी है। एक एक चीजें आपको प्रैक्टिस करनी इतनी ही जरूरी है जितना जरूरी आपको ये आपके सारे रोजमर्रा के काम, उससे कहीं ज्यादा जरूरी ये है आपके रोजमर्रा के काम अपने आप आसान हो जाएंगे जब ये शक्ति को आप पूरी तरह से सरेंडर कर देते हो। तो एनीवेज, थैंक यू so much for being here. Love, light and abundance to all of you. Love you all. Thank you so much. Thank you. Thank you so much.